Again, I'm repeating the specific resistivity. So first of all, factors affecting the resistance of the conductor. The four factors are: one is nature of conductor, and second is the length of the conductor, third thickness. Thickness can be taken as the radius of the cross section of the area. conductor. Yeah, it is the area. Okay, it is inversely proportional. So I had already discussed the example. The example was the area, like if you have a broader road, okay, the Narrow road width, and narrow broad road road. and a broader road, okay. So narrow road में क्या होगा, the resistance will be higher, okay, and broader road मतलब if the area is more, resistance will be less. So therefore I can say resistance is inversely proportional to area, okay. And temperature of a conductor में क्या है, so if you see with the increase in Directly proportional. temperature, हाँ, it is directly proportional. आपने sorry, temperature बढ़ाया तो resistance भी बढ़ गया. Why? Because there will be more number of collision, okay. So what will happen if you in this, yeah, so it will be increasing, yes. The resistance of a bulb is more when it is glowing. That is when is it at high temperature. मतलब जितना ज्यादा वो गर्म हो गया ना तो बल्ब और अच्छा चलेगा, मतलब it will be glowing, okay. So and then we studied the specific resistivity. So यहाँ पे क्या है, it is the resistance. So basically specific resistance is the resistance, but we are going to consider unit area and unit length. मतलब जब 1 मीटर स्क्वायर का कंडक्टर रहेगा एंड 1 मीटर का कंडक्टर रहेगा, what will be the resistance that time? Okay, so when you keep it in unit area and unit length, so actually देखो ना, if L is equal to 1, A is equal to 1, then rho is equal to resistance, okay. So now I think you should understand, मतलब R क्या होता है, R is actually dependent on length, area, temperature and also the material. Therefore इसलिए तो तुमने देखा होगा ना, R is the overall resistance of the conductor where you are going to have some definite length and definite area, मतलब कुछ तो होगा other than 1 centimeter या 1 meter. Unit area और unit को छोड़ के यूनिट होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे. एंड व्हेन अ कंडक्टर इज हैविंग सम लेंथ एंड सम क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब है द रेजिस्टिविटी विल बी मल्टीप्लाइड विद एल अपॉन ए और आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके. ओके, तो बेसिकली व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, है ना. एंड यूनिट आपको मैंने बोला था ओम मीटर, okay, unit of R into unit of A, meter square upon meter, meter cancel, ohm meter. So what is the specific resistivity is characteristic, that is it is different for different substance. So metal के लिए specific resistance will be very low, मतलब कितना, 10 raised to minus 8, minus में आ रहा है minus, okay. And it is going to be low for semiconductor too, मतलब it will be little on higher than the metals, okay, मतलब higher than the metal, तो 10 raised to minus 5, okay. नेगेटिव में minus 5 बड़ा होता है, आई होप इतना तो याद होगा. -8 छोटा है and -5 बड़ा है, okay. And it will be high for insulator, that means it will come in positive 10 raised to 13. Now the specific resistance also depends on temperature, okay. मतलब ये भी है, मतलब आपने यूनिट एरिया लिया, यूनिट लेंथ लिया, so temperature also can affect. So it increases with increase in temperature for metals, and semiconductor में क्या होगा, it will decrease with the increase in temperature, okay. So alloys कौन से है जिसमें कोई change in नहीं होगा, there will be no change in the resistance. So there are only two alloys, one is constantan and manganese. Okay, I had asked you to note down this note. Okay, इसमें लिखा है, the specific resistance of a material of a conductor is constant at a given temperature and it does not depend on the shape and the size of the conductor. It is evident that if a given wire is stretched, okay, इतना मैंने stretch किया कि length double हो जाएगा. When the length is getting double, तो area क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा ना. So One by basically the two. 1 by 2.
So when you are really doing the double, मतलब stretch कर रहे हो, double कर रहे हो, तो always remember the wire will get thin, पतला हो जाता है. So therefore the area becomes half. Okay. So what will happen? So resistance क्या होगा? It will increase to 4 times. Now how to do this? Let's do it. Okay. So R is equal to rho. Now it is of the same material. तो मैं रो को कांस्टेंट लेती हूँ, रो को मैं यहाँ पे पी लेती हूँ, ओके, बिकॉज आई कैन नॉट ड्रॉ रो. ओके, एंड एल अपॉन ए. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ओके, so this is my R. So what will be R1? रो कांस्टेंट रहेगा. व्हाई? बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ऑफ दैट सेम मटेरियल ना, मैं उसी मटेरियल को खींच रही हूँ. तो मैंने क्या किया, 2L, और एरिया क्या हो जाएगा, A अपॉन, A amount 2. हाँ एक मिनट, हाँ क्या किया मैंने, A अपॉन 2. ओके, नाउ ये 2 ऊपर चला जाएगा. सो R1 हाँ. इज इक्वल टू 4 रो Rho L L अपॉन A. ओके, तो व्हाट इज रो L अपॉन A? R. R. ओके, सो ऐसे करना है आपको क्वेश्चंस, आपको एग्जाम में ऐसे दिखाना पड़ेगा. तो रो LA की जगह पे कैन आई रिप्लेस इट इन R? So what will be my Yes. new resistance? New resistance will be 4 times the previous value. Okay, 2 को मैंने ऊपर ले लिया. I hope you know this. A upon B upon C upon D ऐसा कुछ करते हैं ना, तो AC upon, सॉरी जो भी है, ठीक है, AD upon BC. हाँ, तो 2 ऊपर आ जाएगा. Any doubt in this case? No, ma'am. Okay, okay. No, Now, ma'am. so yes, अभी एक काम करते हैं. Let's do 3 times. तो R is equal to रो L अपॉन A. तो R1 is equal to, उसको मैंने 3 टाइम्स किया, तो 3L अपॉन A अपॉन 3. तो 3 ऊपर आ जाएगा, इट विल बी 3 3 9. तो 9L अपॉन A, तो इट विल बी 9 टाइम्स. ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, सो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये इतना ही, तुम लोग बाद में बोलोगे नहीं मैम ये प्लीज वापस समझाओ. अभी पूछ लो कि क्या कर रही, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच ऑल नॉर्मली कम्स, और ये पता नहीं लोगों को क्यों टफ लगता है. ओके, नेक्स्ट इज, उन्होंने वो बोला, derivation पूछते हैं. हाँ यस, आई शो यू. Ma'am, who did we have to write that? यस, इट्स देयर ऑलरेडी इन योर, मतलब टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी, ये देखो. यस, आई वांट यू टू राइट इट डाउन इफ यू वांट, बिकॉज ये आता ही है. और फिर बाद में पूछो मत मैम ये सिखाओ, बिकॉज दिस इज नथिंग एक्चुअली. मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया. हाँ, यस आई नो, यू शोड मी. हाँ, नाउ अदर वन, ऑन द अदर हैंड इफ वायर इज डबल्ड. ओके, वायर डबल मतलब क्या? अगेन, वायर Area डबल doubled. मतलब एरिया डबल हो गया. ओके, तो लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. 1/2. हाँ, मतलब मैंने फोल्ड किया रे, मैंने एक वायर को ऐसे जस्ट फोल्ड किया. सो व्हाट विल हैपन, 1/2. ओके, सो रो L की जगह पे आई विल बी राइटिंग 1/2 L, 1/2. और एरिया की जगह पे 2A. तो Yes, L की ma'am. जगह पे इज L/2 अपॉन 2A. 2A. तो क्या हो जाएगा ये, P L 1/4A. हाँ, तो इट विल बी 1/4, मतलब 2 नीचे रह जाएगा. सो बेसिकली इट इज 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू. ओके, Okay, ma'am. तो ये आ सकता है एक. सो आपको 3 केसेस है. फर्स्ट इज व्हेन यू आर डूइंग ट्वाइस द लेंथ, थ्राइस द लेंथ एंड हाफ द लेंथ. हाफ द लेंथ नहीं बोलेंगे वो लोग, हाफ द लेंथ नहीं बोलेंगे वो लोग, बोलेंगे आपको वायर इज डबल्ड, तब समझ. Twice the area. हाँ प्लीज प्लीज, हाँ ये वाला वाले, वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, इसका मतलब एरिया को डबल किया. ओके, इंग्लिश वो है प्रॉपर. ओके, Yes. okay, now let's take, now there is resistivity, now there will be conductivity, the reciprocal of resistivity.
ohm -1. हाँ, so ohm -1, meter -1, तो Siemens meter -1. The reciprocal of specific resistance is known as conductivity and उसका symbol क्या है? Sigma. Okay, यहाँ पे क्या था? What is the symbol of specific resistivity? Rho. And Rho. conductivity क्या रहेगा? Sigma. Sigma. So sigma है देखो 1/rho, that is L/Ra. Okay. Now choice of material of wire depends on the purpose for which the wire is to be used. ये एग्जाम में बहुत आता है. Now if you want to have transmission, आपको flow करना है. If you want the current to flow from longer Resistivity. distance, हाँ longer distance, मतलब basically जैसे अभी मेरे गांव तक आ रहा है, okay, power transmission चाहिए. So for such connection, you are going to you need to use wires of negligible resistance. Basically, मतलब उसमें कुछ resistance flow होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो current flow ही नहीं होगा. Okay, so due to low or negligible current, resistance चाहिए, the current in the circuit remains unaffected and the loss of energy is prevented. क्योंकि देखो current flow होगा, resistance होगा, धक्का धक्की बहुत होगा, collision will be more, therefore there will be no more heat energy. Okay, so to minimize the loss, we need to have the wire, such wires made from copper and aluminium. Okay, further, if they are made thick, अभी हमने पढ़ा था broader road and narrow road. यदि हमने वायर को thick बनाया तो क्या होगा? Resistance will be low. एक तो already you are using such material where resistance should be less, plus आपने क्या किया? उसको thick बनाया. Okay. Now कॉपर से भी बेटर कौन सा है? सिल्वर. बट व्हाई इट कैनॉट बी यूज्ड? बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट. Expensive. एक्सपेंसिव. या नाउ देयर आर सर्टेन वायर्स, ओके, जो ना टेम्परेचर से चेंज नहीं होता. मतलब सोचो ना, इफ यू रिमेम्बर, अभी हमने बात कर रहे थे ना, सी एनी वायर, इफ वी आर पासिंग द करंट थ्रू दैट वायर, देयर विल बी लॉट ऑफ हीट एनर्जी. ओके, सो अभी मैंने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. दैट मींस मेरा कॉपर वायर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो करंट फ्लो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा. So I need to use such wires where the resistance does not get affected by change in temperature. कौन से है वो? So there are alloys called manganese and constantan, पढ़ा था, where the specific resistance is high, okay, and the effect of change in temperature on the resistance is negligible. Basically मतलब basically there is no effect. ठीक है, effect नहीं होता. सो नॉर्मल आपको रेजिस्टर यूज करना है. लाइक फॉर एग्जांपल आपने अभी जैसे लैपटॉप में, इन लैपटॉप देयर आर लॉट ऑफ रेजिस्टर्स इनसाइड द चिप एंड ऑल. सो इफ यू वांट टू यूज सच, लाइक यू नो, सर्किट बनाना है, सो यू यूज सच. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पावर ट्रांसमिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्म नहीं होना चाहिए. तो सर्किट शुड नॉट, मतलब माय रेजिस्टेंस शुड नॉट वेरी बिकॉज ऑफ heat energy developed in the circuit. So for such reason we'll use manganese and constantan. Fuse wire, now this you already know. So basically I'll just draw a diagram. There is a fuse already given. मतलब ऐसा सोचो कि यहाँ पे दो सॉकेट है. लाइक फॉर एग्जांपल है डायग्राम आपके इसमें. सोचिए यहाँ पे दो ऐसे कुछ तो है. ओके, एंड इन द मिडल ऑफ दिस देयर इज अ फ्यूज वायर. ऐसा बीच में एक वायर है. नॉट अ परफेक्ट डायग्राम, विल डू हाउस होल्ड सर्किट ना, तब आप देख लेना. तो सोचो दिस इज द वायर. ओके, सो दिस इज, यहाँ पे जॉइनिंग हो रहा है. सो नाउ दिस वायर, इफ यू वांट, I don't want excess current to flow in my circuit, because if there is an excess flow, what will happen? Okay, my appliances can get damaged. So अभी जैसे बारिश हो रही है या anything, you know, fluctuations बहुत होते हैं, voltage fluctuations बहुत होते हैं. So because of voltage fluctuation, the current can also come in excess. Like for example, अब हम household circuits पढ़ेंगे. Like for every house या for every society, 30 एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला करंट को अलाउ करते हैं. ओके, नाउ फॉर सर्टेन appliances you need more current, and for certain appliances you don't need that much current.
तो आपका करंट आ रहा है, सोचो कुछ तो आपका मेन फ्यूज उड़ गया या समथिंग हैज हैपेंड. ओके, नाउ दीज आर अप्लायंसेस वायर. सो इफ द एक्सेस करंट कम्स, व्हाट शुड हैपन? क्या होना चाहिए? इट शुड गेट बर्न्ड. मतलब बेसिकली इट शुड स्टॉप द एक्सेस करंट टू कम इनसाइड द अप्लायंस. समझ में आ रहा है? ओके, माय करंट शुड स्टॉप. मतलब कभी भी फ्लक्चुएशन ऊपर आया, it should not be allowed inside the appliance. So therefore I need to make a wire which is made up of an alloy of lead and tin. क्यों? क्योंकि ऐसा होना चाहिए whenever the current is in excess, the melting point इतना कम होना चाहिए कि like if the current is in excess, फट से वो जल जाना चाहिए. तो its melting point is low. Also the specific resistance is more than that of copper and aluminium. Okay, बिकॉज सेफ करंट होता है, मतलब देयर इज अ सेफ लिमिट. आप ऐसे बोलोगे कि आपके घर पे ना सिर्फ 5 एम्पियर का ही करंट आना चाहिए, 5 एम्पियर के ऊपर गया तो तुम्हारा ये फ्यूज उड़ जाएगा. सो नाउ वेयर आई स्टे हियर इन लाइक नेटिव और वेरेवर आई एम स्टेइंग, वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ फ्यूज वायर. यहाँ पे फ्यूज उड़ जाती है. Okay, but in Kumar Paradise or in your societies we have a different type of a structure that is called MCB. So मैं आपको बाद में बताऊंगी हाउसहोल्ड सर्किट में. ओके, बट इन द केस इन द रूरल एरियाज द मोर कंसेप्ट इज अबाउट फ्यूज वायर. ओके, सो दो रीजन है व्हाई इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम एलॉय लाइक लेड एंड टिन, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो, मतलब जल्दी जल जाएगा. एंड सेकेंड, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई. Okay, so that it does not allow excess current to flow. Okay, fourth question. मैम, Yeah, अगर वो जलता है तो फिर वो you need to replace इनडायरेक्टली it. डैमेज ही कर लेगा ना. नहीं, फ्यूज उड़ता है, अप्लायंस नहीं उड़ता है. अच्छा, तो फिर वो करंट बंद ही हो जाता है. हाँ, तो अप्लायंस को हार्म नहीं होता. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जैसे लाइटनिंग स्ट्रक किया. ओके, तो तुमने देखा होगा कि कभी कभी इफ इट इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन उड़ जाता है. बहुत सारे जनों का रेफ्रिजरेटर भी उड़ जाता है. ओके, इसका मतलब है उन्होंने करंट को फ्लो करने के लिए ठीक से हैंडल ही नहीं किया. मतलब सेफ करंट फ्लो होना चाहिए, नॉट द एक्सेस करंट. ओके, सो व्हाई आर ऑल अप्लायंसेस, जो भी आपके न्यू अप्लायंसेस है, दे आर वेरी मच गुड इन गुड शेप बिकॉज दे आर फ्यूज का जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने बहुत अच्छा किया है. सो एक्सेस करंट डजंट फ्लो इनसाइड. ये बहुत ही प्रिमिटिव कंसेप्ट है फ्यूज वायर का, बट आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि फ्यूज वायर अभी भी है. ओके, so filament of an electric bulb, so if you have a, I don't know which bulb I can talk, 60 watt का आता है, yellow light का एक bulb आता है. Okay, a tungsten wire is used because it has high melting point. वो जलता ही नहीं है, मतलब basically उसको ना आप गला नहीं सकते हो. what will happen, मतलब वो आपने लाइट पास किया, it has so much high resistance, okay, that it does not, आगे जाता ही नहीं है. so what will happen, इतना हाई रेजिस्टेंस है तो हाँ, लाइट एंड हीट, एक तो गर्म भी हो जाता है प्लस इट विल स्टार्ट ग्लोइंग. ओके, नाउ फिफ्थ में हीटिंग एलिमेंट इन अप्लायंसेस लाइक हीटर, टोस्टर, ओवन. ओवन आपका OTG इफ यू हैव, या टोस्टर और हीटर, दे यूज निक्रोम वायर. ओके, नाइक्रोम भी बोलते हैं, निक्रोम भी बोलते हैं, व्हाटएवर, बिकॉज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई एंड इसका जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. याद रखना, मुझे जब भी लाइट चाहिए, ओके, आई वांट ग्लो एंड आई वांट मोर हीट, मुझे गरम गरम चाहिए, दैट मीन्स व्हाट आई नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन. नंबर ऑफ कोलिजन होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज. यस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है. तो इन द केस ऑफ फ्यूज वायर सेम कंसेप्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई करोगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा. फोर्थ में क्या होगा, अगेन द सेम थिंग. ओके, रेजिस्टेंस हाई करोगे, बट ये टंगस्टन वायर है. ओके, सो इट विल नॉट, ये जलेगा नहीं. हीटिंग का भी वही कंसेप्ट है, निक्रोम वायर. 5 conditions, choice of material. Now what is superconductor? This is very interesting. Superconductor, it is observed that resistance of some substances like tin, lead decrease tremendously with decrease in temperature,
and becomes almost zero in the low temperature range near absolute zero. मतलब बेसिकली क्या सुपर कंडक्टर मीन्स क्या, आई एम ट्राइंग टू मेक रेजिस्टेंस जीरो. तुम समझ रहे हो मेरी बात क्या करंट बोल रहे हो? तो इन हाँ लार्ज अमाउंट मतलब हाँ करंट मस्त फ्लो कर रहा है. तो ऐसे जीरो रेजिस्टेंस कैसे होता है, टेम्परेचर से ये करते हैं. ओके, जीरो रेजिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, जो एक्चुअली इम्पॉसिबल ही रहता है. So once the current starts flowing in the superconductor, it persists even when there is no potential difference. मतलब क्या बोल रहे हैं, आपने potential difference create भी नहीं किया फिर भी current flow हो रहा है, मस्त current flow हो रहा है. See, for normally to flow a current, you need to develop a potential difference. यहाँ पे तो मस्त flow हो रहा है. तो क्या होता है, what is a superconductor? It is a substance of a zero resistance or infinite conductance at a very low temperature. दैट इज रियली इम्पॉसिबल. आप क्या वहां पे करोगे, आप खुद ही फ्रोजन हो जाओगे. सो कहाँ पे है, मर्क्यूरी बिलो 4.2 के, मतलब व्हाट आर द सुपर कंडक्टर्स विच आर अवेलेबल. सो मर्क्यूरी बिलो 4.2 के, लेड बिलो 7.25 के, नियोबियम बिलो 9.2 के आर दी सुपर कंडक्टर्स. ओके, so where I cannot develop a potential difference and I want some current to flow, superconductors use करते हैं. I don't remember where it is. Okay, the superconductors मैम, are हाँ बोलो. अगर डिग्री सेल्सियस में उसे कन्वर्ट किया तो कुछ तो -200 डिग्री सेल्सियस आ रहा है. हाँ मतलब it is very low ना, which is impossible. इंसान हाँ. कहाँ पे रहेगा उधर, है ना. lot of things are like Yes, theory ma'am. type. Okay, so they can develop but we cannot exist there. मतलब -200 डिग्री करके they must have observed that the current is flowing, but वहां पे इंसान कैसे रहेगा. Okay, where did I go, क्या Ma'am, hmm? but Okay, why do they need zero resistance? see they want like there should be some, see always whenever you need to have potential difference तभी current होगा ना. अभी जैसे अभी मैं गांव में बैठी हूँ, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी मेरे को करंट नहीं मिलेगा. आई नीड टू डेवलप सम करंट. करंट होगा तो हीट एनर्जी होगा, लाइट ग्लो होगा. सो दे आर ट्राइंग टू सी कि इज देयर एनी मेटल और मेटल्स जहां पे करंट फ्लो होगा अपने आप. दैट्स व्हाई दे वांट दिस रेजिस्टेंस टू बी लो. ओके, so size of computers could then be reduced to a few centimeter and power lines could then be made as thin as single wires. Okay, superconductors are not in common use. It is very difficult to achieve such a low temperature. However, they can be very useful if it is possible to obtain them at room temperature. The size of computers could then be reduced to a few centimeter and power lines could then be made as thin as single wires. मतलब बेसिकली ये अचीवेबल हुआ तो क्या होगा, कंप्यूटर्स कैन बी स्मॉल. ओके, और थिन वायर, सी थिक वायर होगा तो देयर विल बी लेस रेजिस्टेंट. बट थिन वायर अच्छा है ना, थिन वायर कंसेप्ट, फिर हमारा कॉस्ट भी तो बचेगा ना. मोटा वायर मतलब कॉस्टली रहेगा यार. कॉपर इज आल्सो कॉस्टली. इट इज नॉट दैट इजी टू गेट कॉपर. ओके, IV ग्राफ. यस मैम. ओके, नाउ इन दिस केस विच ऑफ द कंडक्टर इज ओमिक. यहाँ पे कौन सा है ओमिक रेजिस्टेंस, कौन सा है. both the conductors are ohmic. Why? How did I make a statement कैसे ohmic है दोनों? देयर इज Because नो they are कर्व. straight line. There is no curve. Non ohmic resistance में there will be ऐसा curve होता है, ऐसा कुछ तो curve होगा. Okay, fine. And which conductor has Yes, more ma'am. resistance? ये वाला A will be having, नहीं sorry, कौन सा है more resistance? हाँ more resistance. B कैसे हो गया? जिसका Okay, स्लोप ज्यादा है. नहीं 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 नहीं, बी कैसे हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोटिस इट इज नॉट VI ग्राफ, आईवी इट इज है. हाँ. IV ग्राफ. तो ये कंडक्टेंस हो रहा है. दैट देयरफॉर यहाँ पे आपको किसी ने पूछा A का स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप A ज्यादा है, मतलब वो कंडक्टिविटी ज्यादा है, और B का स्लोप कंडक्टिविटी कम है. दैट मीन्स B इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस. ओके, समझा आपको. So resistance यस मैम. is inversely यस मैम. proportional to slope of IV graph. Fine.
Okay, ma'am. मैम आई यानी करंट ना, और I V यानी voltage, हाँ, potential difference. Okay. अच्छा, Yeah. So now next is just 1 second. Now okay, now this is VI graph. इसका मतलब है यहाँ पे slope क्या दिखा रहा है? Slope is the resistance. रेजिस्टेंस. Okay, and IV graph में the slope is conductance. Okay. So now in this case, first wala kya hai? It is a pure metal because it's a Ohmic. straight line. Yeah, they have already given you. Okay, and B. So yeah, so A and B are ohmic resistance. C is the non-ohmic, and D is also non-ohmic. By seeing the graph, you have to say which are ohmic and non-ohmic resistance. Okay. Now calculate the potential difference if the resistance is 5 ohm and current is 1.5 ampere. Formula क्या है? V is equal to IR. IR. हाँ, so directly apply the formula 5 into 1.5, that is 10.5 volt. Okay. 7 point. Yeah. So next question is electric gadget draws a current of 200 milliampere. Now I request you don't keep anything in milliampere, convert it into ampere. How do you convert into ampere? 200 into 10 raised to minus 3 ampere. है ना? उसको convert करो ampere में. Yes. And then you take out a resistance. So yeah, directly here, this you have already solved it. So V upon I. Just apply the Ohm's law. And you will get तो 12 दिख रहा है आपको 12 upon 200 into 10 is to minus 3, that is 60 ohms. Okay, fine. Now next Yes, question. ma'am. Okay, यहाँ पे भी वही है. Now torch bulb when cold has a resistance of 1 ohm, it draws a current of 300 milliampere when glowing from a source. Calculate the resistance of the bulb when glowing and explain the reason for the difference in resistance. मतलब जब ठंडा है तो 1 ohm है और जब आपने करंट फ्लो किया and when it is glowing, what will be the resistance? So apply the formula V is equal to IR. So if you notice, you will be getting 10 ohms. और जब वो ठंडा रहता है, it will be 1 ohm. Okay. So what is the reason why it is more now? Because resistance increases with the increase in temperature. Okay. When you calculate, you are getting 10 ohm. और जब ठंडा होता है, it will be 1 ohm. Okay. So why there is a difference? Because it increases with temperature. Now this is different and it's numerical. Okay. Now they are asking you to calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire of radius 1 mm and they have given you specific resistance. मतलब ये वाला formula है. R is equal to rho L upon A. Just apply. तो rho दिया हुआ है उन्होंने 1.72 into 10 raised to minus 8 है ना? एंड एल क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर Yes, तो ma'am. 1000 मीटर कर दो उसको. Meters. हाँ, रेडियस क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है. सो रेडियस को तो पहले ये कर दो. इट विल बी 10 रेज टू माइनस 3 मीटर. ओके, प्लस हमको अभी दिस इज एरिया तो हमको पाई आर स्क्वायर करना है. सो इफ यू नोटिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर दैट इज 3.14 into 10 raised to radius कितना 10 raised to minus 3 का स्क्वायर. So it will be हाँ, so 3.14 into 10 raised to minus 6. Apply the formula and get the answer. ये थोड़ा सा सबको कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है. Yes, tell me. 22/7 क्यों नहीं लिया है? नहीं, while calculate नहीं, यहाँ पे आप ये नहीं कर रहे हो. We are not doing mensuration. So always take in physics take 3.14 only as pi का value. Okay. If in case they are given you any specific, यहाँ पे फिजिक्स में उल्टा है. ओके, सो डोंट टेक, आपका कैंसिलेशन नहीं होगा. तो आप देखोगे 3.14 1.72 में कुछ तो लाइक यू नो देयर इज सम सिमिलैरिटी. आप 1/2. हाँ, कुछ तो करोगे. यस. ओके, एनी डाउट इन दिस केस? Okay. No, ma'am. Okay. When a potential difference of 2 volt is applied across the ends of a wire of 5 meter length and current of 1 ampere
flows through it. So what will be resistance per unit length? So first of all आपको क्या निकालना है? So they have given you a potential difference and they have given you current. तो आपको क्या निकालना है? पहले रेजिस्टेंस, कौन से फॉर्मूला से? ओम्स लॉ, V is equal to I. हाँ यूनिटरी मेथड है क्या मैम? हाँ, क्या हुआ? यूनिटरी मेथड है। हाँ, तो वही है, जैसे आप 5 मीटर, यू आर राइट, यूनिटरी मेथड है, मतलब 5 मीटर के लेंथ ऑफ द वायर में रेजिस्टेंस इज 2 ओम, आपने कैलकुलेट किया तो 1 मीटर में कितना? 2/5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइन, दैट विल बी 0.4 ओम पर मीटर, ओके। यस मैम। Okay, now second question they are asking you the resistance of 2 meter, मतलब आपको 1 मीटर का मिल गया ना 0.4, तो 2 मीटर का क्या होगा? 0.4 into 2, that is 0.8. And now they are asking you what will happen if it is doubled. Doubled मतलब if it is doubled on itself, तो 1/4 कर लो, किसका? 1/4 करना पड़ेगा ना, if you remember हमने बोला था. So what is my resistance? तो आपको सिर्फ लिखना, आई थिंक व्हाट विल हैपन, यस आई थिंक यस दे आर आस्किंग यू टू राइट इट डाउन, नहीं ना? किसका बोला उन्होंने डबल करने के लिए? 5 मीटर को ही बोला है ना, ओके। सो बेसिकली व्हेन द वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, दैट मींस एरिया बिकम्स ट्वाइस एंड द लेंथ बिकम्स हाफ. तो लेंथ क्या है ओरिजिनल? 5, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2.5, ओके, एंड एरिया क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एरिया. So if you notice R is equal to rho L upon A. L क्या था इनिशियली? 5. इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब आपको 2 मीटर ही पकड़ना है शायद, हाँ मेरे को समझा नहीं था. तो रेजिस्टेंस इनिशियली कितना था? 2 रो 5 अपॉन A. ऐसे सॉल्व करने की क्या जरूरत है? आई डोंट नो. एंड नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2.5 अपॉन 2A. तो जस्ट डू डिवीजन, 1/4 आएगा. तो मैं तो बोलूं तुमको, मैंने अभी सिखाया था कि रेजिस्टेंस इज 1/4. So if my resistance of 2 meter is, for 2 meter is 0.8, okay, तो डबल करेंगे तो क्या होगा? डबल ऑन इटसेल्फ में क्या करेंगे? 0.8 का बाय 1/4, 2, राइट ना? अच्छा हाँ, या 0.2 0.2 कैसे? मैम डिवाइड होगा ना, तो 8/40, 1/5, 0.2 आ रहा है. तो मैंने कुछ गलत 0.2 बोला क्या? मैम सेम ही था. 4 2 जा 8. इनिशियली 2 मीटर, ए नहीं, ये 5 मीटर की बात कर रही हूँ. 5 मीटर का कितना है रेजिस्टेंस? आई एम वेरी सॉरी, इनिशियली आपको 5 मीटर लेना है. मैंने 2 रेजिस्टेंस का क्यों लिया? सॉरी, हाँ मैंने क्या किया? आई 5 नीड टू मीटर का 2 ओम्स है. यस वी हैव टू टेक, यस. तो 5 मीटर का मैंने लिया है, जिसको मैंने डबल किया. इसका रेजिस्टेंस कितना था? 2 ओम्स, ओके. अब मैंने डबल किया तो क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 ऑफ ओरिजिनल. तो मतलब ये मेरा आर डैश है, ओके. आर डैश इज 1/4 ऑफ दी ओरिजिनल. हमने किया था ना आगे, आप पूरा सॉल्व कर सकते हो. सो 1/4 अपॉन 2, मतलब 2/4, दैट इज 0.5. कैन यू ज्वाइन बैक? यस मैम.